guys, moving forward, we have another very awesome and brilliant workshop planned ahead for you. That was actually the bonus workshop. ये एक bonus workshop था. So yeah, uh, the speaker is already with us in the room. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Tahir Masood. He is a senior software engineer at Dia Interactive Karachi, and he is really an awesome person. Like मैं इनकी तारीफ बयान नहीं कर सकता because he is my mentor, right? तो अपने mentor की ना कोई तारीफ नहीं बयान कर सकता. So Tahir bhai, are you there? Hello. Am I audible? जी ताहिर भाई, yes, you're audible, but your voice is a bit feeble. आप थोड़ा Okay. loudly अगर कर लें, and yeah, the stage is all yours. Bismillah. Uh, ju- just give me a second. Yeah, yeah, sure. Guys, Yeah, I'm sure it yeah. would be much better now. Ji Tahir bhai, it is better now, but still it's not. I guess. But yeah, it's got better. Uh-huh. So, first of all, thank you so much, Mursal, for this brief. And guys, I work alongside Mursal, तो definitely ये अपनी personal जो इनके experiences हैं ये उसकी base पे share कर रहे हैं. But I totally believe कि हमें equally अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने हैं और हम सबको इक्वली एक्सेल करना है. So that is the reason I'm here, and that is the reason I want to share my experience and share my knowledge over some of the areas that I would like to share some lights on. So first of all, quick brief about myself. I've been in the industry for around a decade, and I did my bachelor's from FAST back in 29, and after that I just joined companies after companies. Few notable experiences are ex Kareem. I've been part of their revolutionary experience starting from the very beginning, and there were also some startups operating inside mental well-being, like Saya Health, and if they have a quite good reach in IT sector as well as multinational corporations like Angro and a few other as well. So yeah, that was a quick brief about myself and what I've been up to and what I'm doing at the moment. So going forward, I just start sharing my screen and start going through with the presentation I have made. Uh, all right. Let me know if you can able to see my screen. Ji Tahir bhai, your screen is quite visible. Great, great, great. All right. So first of all, are you guys are flexible in any kind of in any language? Just let me know. I will switch myself over in that specific language, like English or Urdu, so it would be better understandable for both of the participants. Tahir bhai, since most of the audience is from Pakistan, so I think so. I think it would be great if we go for Urdu. ग्रेट ग्रेट सो बहुत अच्छी बात है और यकीनन अगर इससे हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी में फ़र्क पड़ रहा है तो वाई नॉट उर्दू. सो जैसे आप सबको पता है मेरा नाम ताहिर मसूद है और आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जो हमें लगता है कि अगले करंटली करंटली और अगले कुछ सालों में नेक्स्ट बिग थिंग होंगी. तो क्योंकि मैं खुद एक टेक पर्सन हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट टेक रिलेटेड डिस्कशंस में ज़्यादा होता है, रादर उसकी इम्प्लीकेशन टुवर्ड्स बिजनेस कि बिजनेस में उसका क्या इम्पैक्ट है या उसकी इम्प्लीकेशन बिजनेस एरियाज में किस तरीके से, उससे कहीं ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लेता हूँ उस टेक्नोलॉजी की अपनी इन डेप्थ डिटेल में
और उसके अगेंस्ट हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और किन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं। तो यही मेरा आज का मेजर फोकस होगा। जैसे कि टाइटल बता रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज जो हमें एज अ बिग थिंग लगती हैं करंट सिनेरियो में और आगे आने वाले कुछ अरसे में। तो हम प्रोसीड करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट कैटेगरीज में, तो इनमें कुछ जो हम कवर करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है मशीन लर्निंग से, कुछ स्पेसिफिकली सॉरी, तो कुछ स्पेसिफिकली कनेक्टेड है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लो कोड एंड नो कोड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज है, प्लस लास्ट सेक्शन जो है वो हमारा रिलेटेड है वेब डेवलपमेंट से। तो हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन इन तमाम एरियाज को टच बेस करें और इसके अगेंस्ट जिन टेक्नोलॉजीज को हम कवर करने जा रहे हैं उनको इन सेक्टर्स के अगेंस्ट इवेलुएट करें। तो मूविंग फॉरवर्ड, पहला टॉपिक हमारा है मशीन लर्निंग। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे टूल्स को एड्रेस करने की कोशिश की है जो कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड है और हमें लगता है कि ये एक नेक्स्ट बिग थिंग होंगे ओवर कमिंग ईयर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टैग है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, जिसको आप आमतौर पे GPT-3 से एड्रेस करते हैं। तो GPT-3 बेसिकली एक कॉमन एआई पैट एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन है जो कि मेक श्योर कर रहा होता है कि आपके जितने लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप अपनी एक डीप लर्निंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे आप अपने किसी भी सवाल या किसी भी क्वेरी को एक ह्यूमन लाइक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें। इसके एग्जाम्पल में आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वक्त अपने बीटा मोड में मौजूद है और इसके ऊपर एक क्वाइट एक्सपेंसिव एक हम बात करें नॉलेज बेस की सूरत में, तो वो डेवलप हो रहा है और ना सिर्फ डेवलप हो रहा है बल्कि इस वक्त वो अपने तमाम तर फंक्शंस के साथ हमारे लिए यूजेबल मौजूद है। इसलिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंज्यूमर है जिन्होंने अपनी कंप्लीट लेआउट को क्रिएट किया है बाय जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं कि मैंने एक लेआउट जनरेटर यूज करते हुए और मैंने सिर्फ अपनी लेआउट डिफाइन, उसके अगेंस्ट जो हमारा जनरेटर है GPT-3 बेस्ड जनरेटर, उसने उनको कंप्लीट लेआउट डिफाइन करके जनरेट करके प्रोवाइड कर दी। अब इसके अगेंस्ट बेसिकली हुआ ये होगा कि हमारे जो कंज्यूमर हैं इन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की होगी या डिस्क्राइब की होगी और उस बेसिस पे हमारा जो जनरेटर है उसने वो कंप्लीट लेआउट अपने नॉलेज बेस के अंदर से, यानी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस एआई जितनी उनके पास डेवलप हो चुकी है उस बेस पे अपने एक्सपीरियंसेस से निकाल के उनको प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ भी कंज्यूमर जो है इन्होंने अपना जो भी प्रॉब्लम है वो स्टेट किया है और उसके अगेंस्ट हमारे जनरेटर ने उनको कंप्लीट JSX कोड जनरेट करके दे दिया है। मैं एग्जीक्यूटिबल कोड की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट कोड बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम जनरेटर, जो अपने कॉमन यूज केसेस जो कि इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट मौजूद है, प्लस उन यूज केसेस के अगेंस्ट उनके टेस्ट केसेस, उनको टेस्ट करने के बाद आपको एक एग्जीक्यूटिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और जो कि JSX बेस्ड है। दैट मीन्स कि हमारी जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं लाइक रिएक्ट और एंगुलर और व्यू, उनके कंप्लीट पार्सेबल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। JSX जैसा कि अगर आपको नॉलेज हो कि JSX किस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि जावास्क्रिप्ट प्लस HTML,
तो आपकी HTML जो है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर से पास होके आपको जनरेट हो रही होती है, और इंडियन कंपाइलर उसको कंपाइल करके एक प्लेन HTML क्रिएट करता है जो कि यूज़ होती है ब्राउज़र में रेंडर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमारे जनरेटर से एड्रेस करने के बाद एक कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोवाइड किया है, या कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इसकी एक मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि गिटहब ने ये सर्विस स्टार्ट की है, जहाँ पे आप गिटहब प्रीमियम यूज़ करते हुए अपने जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे पोस्ट करें। उसके बाद गिटहब कॉमन रेपोस जो कि डिफरेंट यूज़र्स वहाँ पे पुश करते जा रहे हैं, उनको यूज़ करते हुए सॉरी उनको यूज़ करते हुए बेस्ट मैच आपको निकाल के प्रोवाइड करें, और उस बेस्ट मैच को वो गिवन सेट ऑफ टेस्ट केसेस और यूज़ केसेस आपको वैलिडेट करके प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो और जनरेटर जो है वो आपको कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। आई वुड से इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स यूज़र अपने शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसको किस तरीके से हमारा जनरेटर एड्रेस कर रहा है या उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें आप रेंज देख सकते हैं। इनिशियली हमने देखा था कि कोड बेस्ड सॉल्यूशन के बाद के अगेंस्ट बात हो रही थी, और उसका जो सॉल्यूशन था वो प्रोवाइडेड था। यहाँ पे हम डिज़ाइन फिग्मा की बात करें तो फिग्मा भी इनको कवर हो रहा है। प्लस आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है यहाँ पे दिख रहा है कि जो यूज़र हैं इन्होंने एक क्यूरी प्रोवाइड करने की कोशिश क्यूरी आस्क करने की कोशिश की, और हमारे जो जनरेटर है उसने कंप्लीट क्यूरी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में उनको प्रोवाइड की। तो आप इसकी रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जनरेटर स्टार्टिंग फ्रॉम यूज केसेस टू एग्जीक्यूटेबल कोड, फ्रॉम डिज़ाइन एलिमेंट टू एग्जीक्यूटेबल क्यूरीज। तो इनकी कवरेज किस तरीके से नॉलेज बेस की बेस पे वेरी करती जाती है, और आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कमिंग फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकती है, और डेफिनेटली एक ऐसी टेक है जिस पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, या ख़ुद को उसके लेवल पे लाने की ज़रूरत है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि GPT-3 से रिलेटेड है। ये मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा यहाँ चैट में, ताकि हम इनको यूज़ कर सकें जितने भी हमारे इंटरेस्ट है, और उस बेसिस पे हम इनको एक्सप्लोर कर सकें, और इसके अगेंस्ट अपनी किसी भी तरह की जो क्वेरीज हैं, किसी भी तरह के कंसर्न्स हैं, उनको रिजॉल्व कर सकें। ओके, यहाँ के हमारा जो पहला टॉपिक था वो कवर हो जाता है, दैट मीन्स के AI बेस्ड सॉल्यूशंस या मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट थिंग इज लो कोड एंड नो कोड। एक कॉमन हमारे जहन में एक थोड़ा सा एक खाका बनता है कि लो कोड और नो कोड से मुराद यही होगी कि हम बहुत ज़्यादा कोड नहीं कर रहे, या स्पेसिफिक बिल्कुल कोड नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रॉब्लम बता रहे हैं, या एग्जिस्टिंग जो सोल्यूशन है उनको उठा के अपने कंपोनेंट्स की सूरत में हम अपने पास प्लग एंड प्ले कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम मज़ीद देखते हैं। ये कोई ब्रीफ सी डिस्कशन है कि लो कोड नो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो यूजुअली हमारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो हमें अलाउ करते हैं यूजुअली हमारे जो एक हमारी एजेड डेवलपर्स हैं, या जिनको हम बात करते हैं कि ये एक ऐसी एज ग्रुप से रिलेटेड है जो कि एक्टिव डेवलपमेंट नहीं कर रहे, या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में काम नहीं कर रहे हो, वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस इस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस में इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ आता है कि वो मे बी ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है, वो सिंपली प्लग एंड प्ले हो सकता है, या इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि ईजीली डेवलप्ड हैं और ईजीली इंटीग्रेटेबल हैं। कॉमन अगर हम इकोसिस्टम्स की बात करें तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं जो कि इसको यूज़ करते हुए हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम वेब में देखें तो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड ई कॉमर्स में आपको एक कंप्लीट पैक नज़र आता है, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम
बुकमार्क, और उसके ऊपर शॉपिफाई की इंटीग्रेशन वो कर पा रहे हैं। इसका स्पेस यूज़ कर रहे हैं, विक्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि बड़ा कॉमन वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप अपनी होस्टिंग, अपनी स्टैटिक टेम्पलेट्स और अपने डायनामिक टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप ओडो देख रहे हैं, जो कि कॉमन शेयरपॉइंट बेस्ड सिस्टम है। सॉरी। इसी को हम मज़ीद वारी करें तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस बेस्ड सोल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, जो कि डिफरेंट थीम्स और डिफरेंट लेआउट्स पे डिपेंडेंट है, और जिनके अंदर आप बेसिकली इनको सिंपल प्लग एंड प्ले की सूरत में अपने चलते हुए किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं विद इन वेरी मिनिमल सेट ऑफ इंटीग्रेशन स्टेप्स, और उनकी बेसिस पे आप अपनी एप्लीकेशन में एक नया कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट इन्होंने बेसिकली बबल करने की कोशिश की है, और अब यहाँ बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमारे पास सपोर्ट मौजूद है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम अपने एप्लीकेशंस को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि कितनी सूरतों में हमारे स्टैक मौजूद हैं, और कितनी सूरतों हम उन्हें मज़ीद एक्सपेंड और स्केलेबल वे में मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे देखते हैं कि करंटली मार्केट कोटा और मार्केट स्पेस कितनी ये कवर कर रहे हैं, और कितना इनका एक पर कैपिटा इनका साइज है, जो कि इस वक्त डिफरेंट मार्केट्स में नोट हो पा रहा है। तो अगर हम बात करें 2019 से 2024 की, तो दे आर एक्सपेक्टिंग 45.2% ग्रोथ, जबकि नंबर्स में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2018 तक इन्होंने अंदाज़न $5.6 बिलियन की एक बिजनेस कवर किया था, लेकिन 2024 में द एक्सपेक्टेड बिजनेस इज समथिंग वे मोर 10 और अराउंड 10th ऑफ परसेंटेज। तो 5.6 से आपको जंप नजर आ रहा है 52.3, तो बेसिकली दैट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम दे आर एक्सपेक्टिंग, और उसकी बेस पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ह्यूज नंबर है, जो कि एक बहुत ह्यूज परसेंटेज जंप है, जो कि ये प्लेटफॉर्म फोर्सी कर रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन एरियाज़ को कवर करने की ज़रूरत है, अगर हम अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं और अप टू द मार्क रखना चाहते हैं विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ नंबर्स जो कि हमें बता रहे हैं इनका साइज और इनकी वैल्यू और स्टीम्ड वैल्यू जो कि ये फोर्सी कर रहे हैं। लेट मी या सो द नेक्स्ट सेक्शन इज रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट। हम सभी कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ को प्रेजेंटेबल बना रहे होते हैं अपने सॉल्यूशंस को, ताकि वो यूज़र्स के लिए एक बड़े अच्छे एक्सपीरियंस में या बड़े सीमलेस एक्सपीरियंस में दिखाई दे सकें, वो उसको यूज़ कर सकें, वो उसको बड़े इजीली जो भी डिज़ायर्ड ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक टूल है Next.js, जो कि एक बेसिकली एक रैपर है जो कि बिल्ड किया गया है कॉमन लाइब्रेरी पे अंडर द नेम रिएक्ट। तो ऐसा क्या है कि रिएक्ट जो कि खुद एक बहुत रिनोन लाइब्रेरी है और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्वायर की जाने वाली लाइब्रेरी है, हम उसके ऊपर एक रैपर देखते हैं क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं रिएक्ट के जिनको ये एड्रेस कर रहा है, क्या ऐसे शॉर्टकमिंग्स हैं, ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिनको ये कवर करने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी सूरत में Next.js एक कंप्लीट फ्रेमवर्क की सूरत में हमारे पास सामने आता है, जो कि कवर कर रहा है रिएक्ट के ऐसे शॉर्टकमिंग्स या लूपहोल्स को जो कि इनिशियली मौजूद थे। तो ये कुछ ब्रीफ है जो कि बता रही है कि Next.js किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, किन एरियाज को कवर कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, Next.js फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट। तो इन इन लाइन यहाँ पे आपको रिएक्ट के फ्रेमवर्क के चलते रिएक्ट के जो प्रोसेसेस हैं वही फॉलो होते दिखाई देंगे, बट एक
बड़े ऑर्गेनाइज बिहेवियर में और बड़े एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर में। तो इसकी कुछ हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि 2016 में ये डेवलप हुआ, इस वक्त ये अपनी मेच्योर स्टेट में मौजूद है। अभी अगर हम आगे इस लाइब्रेरी की पर्सनल जो नंबर्स हैं या स्टार्स और कोड्स हैं वो भी देखेंगे, जो बेसिकली इसको बता रही है कि करंटली कितना स्टेबल है, कितना मेच्योर है। रिएक्ट की किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। कॉमनली आप फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को सर्वर्स आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग यूज़ करते हुए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अपनी एप्लीकेशंस को आप डेवलप करते हैं इस तरीके से कि वो क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रही हो और एक फास्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बिहेवियर में आपके पास डिस्प्ले हो रही हो। लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग से रिलेटेड हैं, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यूज़र्स के कंट्रोल F5 करने पे हमारी एप्लीकेशन सीमलेस तरीके से बिहेव करे, ब्रेक ना हो जाए या हमारी स्टेट लॉस ना हो जाए, जो कि यूजुअली आपके पास नहीं हो रहा होता कवर। और अगर आप उसको कवर करने के सर्वर साइड रेंडरिंग की तरफ जाएँ तो वो उसके अपने चैलेंजेस हैं। उसके लिए डेफिनेटली आप किसी स्पेसिफिक एक्सप्रेस या नोड बेस्ड सॉल्यूशन पे जाते हैं जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग को हैंडल कर रहा होता है। दैट मीन्स आप एक आउटसाइड द बॉक्स सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। रिलायंस को कैसे कवर कर रहा है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड रेंडरिंग की बेस पे आपका जो लेआउट है वो स्टार्ट कर रहा है, और उसके अंदर आप अपने जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको रेंडर ही इस तरह कर रहे हैं कि आपकी तमाम तर राउट्स हैंडल हो रहे हो सर्वर एंड। इसका बेनिफिट क्या है कि हमारी जो भी स्टेट लॉस वाले प्रॉब्लम्स है या ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे हमारी स्टेट मेंटेन नहीं हो रही होती इन द फॉर्म ऑफ सर्वर रेंडर या हार्ड रिफ्रेशेस, वो चीज़ हम यहाँ कवर कर रहे हैं। प्लस रिएक्ट का एक बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ फीचर है आइसोमॉर्फिक रिएक्ट, जो कि हम मैनुअली हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस उसको बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क बेसिस पे हैंडल कर रहा है, जहाँ पे आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो बोथ सर्वर साइड और क्लाइंट साइड सेम वे में रिएक्ट कर रही है। आपके तमाम तर राउट्स, तमाम तर कंपोनेंट्स दोनों एंड पे मौजूद हैं। आप इधर उसको सिंपली राउट चेंजेस एक्वायर करें या अपने एक हार्ड रिफ्रेशेस आप परफॉर्म करें, दोनों सूरतों में आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपनी सेम स्टेट के अंदर रहते हुए आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो एक बड़ा एक ऐसा फीचर है जो यूजुअली रिएक्ट वाले डेवलपर्स बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या उसको मैनुअली हैंडल कर रहे होते हैं, और इस चीज़ को नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क बेसिस पे हैंडल कर रहा है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि एक बड़ा डिफाइनिंग इसका पार्ट है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास कोड स्प्लिटिंग करने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम यूजुअली ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग यूज़ कर रहे होते हैं, या हम किसी CRA को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि क्रिएटेड टैब की अगर कंप्लीट मिसाल दूँ, वहाँ पे आप मैनुअली इसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन नेक्स्ट.जेएस इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। आपके जितने लोड्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपके जो भी पेज लोड्स हैं वो बड़े फास्टर तरीके से रेंडर हो सकें। उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्प्लिटेड वे में डिज़ाइन है, और उनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि वो बहुत मिनिमल एक कंप्लीट पेज लोड प्रोवाइड कर सकें। राउटिंग यहाँ पे आप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्लाइंट साइड राउट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल सर्वर साइड पे भी हो रहे हैं यूजिंग सर्वर साइड रेंडरिंग। तो अगर आप सिंगल अपने क्लाइंट साइड राउट ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली उनको लिसन कर रहा है और उस बेस पे आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको आइसोमॉर्फिक वे में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मज़ीद एलिमेंट्स जैसे कि सेस एंड लेस सपोर्ट फॉर CSS प्री कंपाइलर्स, हम यूजुअली CRA या किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन मैनुअली जिसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नेक्स्ट.जेएस को कॉन्फ़िगर करके हमारे पास एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। दैट मीन्स अगर आप नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी यूजिंग सम काइंड ऑफ सेस और लेस प्री प्रोसेसर फॉर CSS, और उसकी बेसिस पे आपकी जो भी CSS है वो प्री कंपाइल्ड होंगी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और जितने भी हमारे पास सेस और लेस के एडवांटेजेस हैं उनको वो कवर करके आपको प्रोवाइड कर रही होंगी। तो बेसिकली जो चीज़ें आप मैनुअली हैंडल कर रहे हैं या किसी बूटस्ट्रैप वे में किसी
बॉयलर प्लेट को यूज़ करते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें Next.js आपको मैनुअली हैंडल करके दे रहा है। एनवायरनमेंट्स जो कि यूजुअली हमारे पास मैनेज नहीं होती हैं, हम उनको हैंडल कर रहे होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट पैकेजेस के ज़रिए और एनवायरनमेंट फाइल्स के ज़रिए उनको ये मैनेज करके दे रहा है। तो Next.js के अंदर अगर आप कोई भी फंक्शन, कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एनवायरनमेंट सपोर्ट मौजूद होंगी, जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को हैंडल कर रही होंगी, लाइक स्टेजिंग, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन। और उस बेसिस पे आपको अपनी डिफरेंट एनवायरनमेंट फाइल्स को हैंडल करते हुए अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट एनवायरनमेंट के अगेंस्ट इजीली सेटअप कर सकेंगे। लास्टली आपके जो राउट्स हैं, अगर आप सर्वर साइड यहाँ पे कॉल्स मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके एपीआई राउट्स होंगे जो कि डिफरेंट एंड पॉइंट्स को सपोर्ट दे रहे होंगे। बट यहाँ पे आप उनको एज अ सर्वरलेस फंक्शंस आप हैंडल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप उसको किसी फायर बेस या क्लाउड बेस सर्विस पे एज अ फंक्शन या लैम्डा फंक्शन आप अटैच करना चाहते हैं, तो आपके वो जो सेपरेटली एपीआई राउट्स हैं उनको आप सेपरेटली एक्सपोज करने के बाद, एक्सपोर्ट करने के बाद, आप उनको एज अ सेपरेट फंक्शन डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीटली सर्वरलेस एनवायरनमेंट, सर्वरलेस वे में वो आपको अवेलेबल होंगे और आप उनको यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली, रादर कि आप उसको मैनुअली इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं या बेसिक शॉर्टकमिंग्स हैं जो कि Next.js कवर करके दे रहा है। मैं है ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रिएक्ट्स फाइंडिंग्स, और उसकी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि रिएक्ट के अंदर काम करते हुए जिन चैलेंजेस का मैं सामना करना पड़ रहा था वो Next.js किस तरीके से हैंडल करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं जो कि Next.js खुद आपको बता रहा है कि हम किस तरीके से किन सर्विसेज को हम यूज़ करते हुए आपके पास एज अ एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जिस तरीके से कुछ चीज़ों को हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, उन्हीं को हमने मज़ीद एक्सटेंड किया है। ये Next.js की डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन है, आप इजीली इसको किसी भी ब्राउज़र में यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं, और आप मज़ीद उसको एक्सप्लोर करते हुए ये चीज़ देख सकते हैं कि किन एरियाज़ को Next.js एड्रेस कर रहा है और हमारी किन प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस कर रहा है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो कॉमन जो हमारे पास बिहेवियर टाइप स्क्रिप्ट का उसको सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड प्री रेंडर पेजेस की सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास एनालिटिक्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जिसकी अगेंस्ट आप अपने गूगल एनालिटिक्स या किसी भी इस तरह के कॉमन मैट्रिसेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, प्लस उनकी बेसिस पे अपने जो भी एप्लीकेशन है उसके नंबर्स और यूज़र्स और स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इमेजेस के अगेंस्ट आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आपके डिफरेंट अगर साइजेस हैं या डिफरेंट आपकी डिफरेंट आपके स्क्रीन साइज है, उस बेसिस पे आप अपने इमेजेस को डिफाइन करते हुए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जैसे डिफाइन इन्होंने किया हुआ कि ज़ीरो कॉन्फ़िग रिक्वायर्ड, तो आप बहुत इजीली बहुत लेस टाइम के साथ अपने जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक ईदर इन द फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट्स और ईदर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िग। आप अपनी ऐप को विद इन नो टाइम कॉन्फ़िगराइज कर सकते हैं। सीएसएस सपोर्ट में जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था किस तरीके से सेस और लेस का प्री प्रोसेसिंग को इनेबल कर रहा है, तो इस सपोर्ट को इन्होंने डिफाइन किया है। एपीआई राउट्स को इन्होंने सेम उसी तरीके से डिफाइन किया है, और इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ करंट मार्केट जायंट्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी बिल्ट हैं Next.js को यूज़ करते हुए, जिसमें हम देख रहे हैं कि कितने इंडस्ट्री जायंट्स के नाम हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दैट डेफिनेटली शोज़ के Next.js कितना कॉमनली अडॉप्टेड है, कितने ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं, और कितने नेक्स्ट इंडस्ट्री जायंट्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं।
अगर हम लाइब्रेरी मेच्योरिटी की बात करें तो आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं इसके अराउंड 73.1 पर 1000 प्लस फोक्स आपको 14.3 थाउजेंड नज़र आ रहे हैं, जो कि नंबर्स बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है और कितनी ज़्यादा इसके अंदर मर्ज रिक्वेस्ट मर्ज हो रही है। इस जगह पे आके हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये समअप होती है, जो कि बेसिकली हमने तीन एरियाज में हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी और उसको हमने कोशिश की कि वन बाय वन हम उनको टच बेस करें और उनको फोकस करते हुए अपने जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस करें। तो इस जगह पे आके आई थिंक मैं अपनी प्रेजेंटेशन के एंड पर आ गया हूँ और आई वुड डेफिनेटली गो फॉर सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो मे बी मैं उनको नोट ज़रूर करूँ और किसी भी प्रॉपर चैनल पे मैं उनको एड्रेस कर सकूँ। तो आई थिंक इट्स टाइम कि आप अपने जो भी कंसर्न्स हैं वो शेयर करें एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हेयर फ्यू ऑफ दोस्त। जी बुरसल, हेलो। Guys, if you have any Yes, question, sir. you can drop down in your chat. If you have any question regarding like this session or regarding any query you are having in your mind, um, feel free to share it in the chat box. Well, Tahir bhai, that was really an awesome session, and thank you so much for covering it up so brilliantly. आई होप सो सबको जो है ना कुछ मतलब ऑब्वियसली हम हर चीज़ तो जो है वो ग्रैस्प नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में इन द वेरी फर्स्ट को, बट आई होप सो कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी इस बूट कैंप से आपने सीखी, एंड वी रियली विश that you guys utilize all that we have learned in this boot camp. We have tried to convey in this boot camp in your future, in your practical life as well. Uh, So yeah, at the moment, I think most of you would not know me. अच्छा ये we are very sorry Nazia, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और थोड़ा बता दें. This question was supposed to be asked with Mr. Sarfraz. I think he has left us. He has left the meeting. You can contact him on the email address and mobile number that he has left in the chat. Okay, yeah. So I was saying that most of you might not know me. जी तार भाई. वन मोर एंड थिंग बुरसल, डेवलपमेंट के बारे में भी सर सो थोड़ा कुछ और बता दें. द कंप्लीट वन मोर क्वेश्चन. थिंग मसल यहाँ पे आप मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी डेफिनेटली यहाँ शेयर कीजिए। प्लस जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि जो भी आपके कॉमन कंसर्न्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है तो आप डेफिनेटली उसको शेयर कीजिए। मेरी कोशिश होगी मैं उसको एड्रेस करूँ या आपको डायरेक्ट करूँ किसी ऐसी रिसोर्स की तरफ जो आपको बेहतर तरीके से उस पर गाइड कर सके। तो that's all we do usually and that's all I would do specific in this case, क्योंकि एज अ सीजन प्रोफेशनल हमारा काम यही है कि हम अपने जो भी नेक्स्ट कोलीग्स हैं या फ्यूचर पोटेंशियल कोलीग्स हैं उनको हेल्प करें, उनको ट्रेन करें और उनको इस काबिल करें कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेंड करें। So that is all we do usually and that is what I would do here as well. तो मुरसल आप काइंडली मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर यहाँ पेश कर सकें या मैं अगर ऐड कर दूं और उसके अगेंस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट तार हैं भाई एक्चुअली आप वी हैव किसी भी क्वेश्चन. तरह की We have a question by Ata Rasool. He says बैकएंड के जी जी लिए मार्केट के हिसाब से मोस्टली कौन सी लैंग्वेज पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. या हाँ ऑलराइट। सो देखें, आप अगर लैंग्वेज से हटके आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैटर्न की तरफ जाएं
तो आई वुड Hello, सजेस्ट कि वो आप सॉरी मिर्सल, आप सुन पा रहे हो मुझे? हेलो? Yes, sir, you are audible. ऑल राइट। सो अगेन ये जो सवाल था बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो मेरा जो आंसर होगा वो ये कि अगर आप फोकस किसी भी लैंग्वेज की जगह उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैटर्न पे करें तो वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, क्योंकि इन दी एंड लैंग्वेज एक खास सिंटैक्स आपको प्रोवाइड कर रही है किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। लेकिन जो उसके पीछे बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैटर्न है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको किसी भी लैंग्वेज में किसी भी खास सिंटैक्स को यूज़ करते हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प करेंगे। ट्रेडिशनली हमारे पास डॉट नेट बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जावा बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, नोड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, पाइथन है। आई थिंक इनिशियली अगर आप पाइथन या नोड से स्टार्ट कर सकें, क्योंकि नोड अगेन जावास्क्रिप्ट बेस्ड सॉल्यूशन है, तो वो आप यूजुअली फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे होते हैं, आप उसको बैक एंड पे अगर यूज़ करने जाते हैं तो आई थिंक वो बहुत कम टाइम में अडॉप्टेबल हो सकती है। और अपनी नौयत में नोड.जेएस इतनी कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है, इतनी कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट है, इतना कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप तमाम तर बिजनेस प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, तमाम तर कॉम्प्लेक्स बिजनेस सॉल्यूशंस को भी एड्रेस कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, और एक इनिशियल लेवल पे प्लस एक एडवांस लेवल पे आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तो इनिशियली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद किसी भी लैंग्वेज में रिगार्डलेस कि वो कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ताहिर भाई हमारे पास एक Tahir और bhai, भी we have सवाल है another question as well. जी जी, प्लीज़। Okay, Gopal, carry on, please. I have got a bad internet. ताहिर भाई हमारे पास एक और सवाल है कि बोस्टिंग की जो पोस्ट होता है फेसबुक पे, वो इफेक्टिव वे है मार्केटिंग के लिए या नहीं? देखें, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा इस में मेरे नहीं ख्याल में अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँगा। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन ई कॉमर्स सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत मैं लो एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी डिफरेंट बूस्टिंग सर्विस को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को वायरल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों की या अपने पेजेस की जो रीच है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट इन दी एंड आपको कंटेंट बहुत ज़रूरी चाहिए। कंटेंट मैटर करता है, आपका कंटेंट कितना अप टू द मार्क है, कितना कितना अप टू द डिमांड है, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, इन दी एंड आप बूस्ट करके अपने पेज को टॉप पे तो ले आएंगे, लेकिन उस पेज के अंदर क्या आइटम, क्या कंटेंट मौजूद है, वो कितना ज़्यादा यूज़र को अपील कर रहा है, ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आप बूस्ट करने के बाद भी अपने पेज पे या अपने प्रोफाइल पे अप टू मार्क कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपकी रिटेनिंग जो नंबर्स हैं वो बहुत लो होंगे। यानी यूज़र आपके पेज पे आ तो गया बूस्ट होने के ज़रिए, आपका पेज टॉप पे आ तो गया, लेकिन उसके बाद उस पर यूज़र कितना रिटेन हो पा रहा है, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, अनलेस आपका कंटेंट इतना अप टू द मार्क हो। ताहिर भाई हमारे पास एक और सवाल है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा बेस्ट है इन द फ्यूचर फॉर सपोज जो न्यू कमर होते हैं या जो न्यू ज्वाइन करते हैं यूनिवर्सिटी, तो उनके पास बहुत सारी चॉइस होती है, जावा एंड पाइथन, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ करनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, थोड़ा सा अभी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने इसी तरफ इशारा किया था कि अगर आप लैंग्वेज से हट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करें, तो वो आप किसी भी लैंग्वेज में इन दी एंड परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटी में। ये मेरा मानना है, ये हमारा एक कॉमन बिलीफ है। अच्छा, अब आप लैंग्वेज की तरफ अगर आप जाना चाहें तो आपको थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो किस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड से रिलेटेड है। यानी आप
ज़्यादा सुटेबल किस तरफ हैं, क्या आप चीज़ों को विजिबली डिज़ाइन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आप उसकी इन डेप्थ फंक्शनैलिटी के ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगी, आपके डेटाबेस से हिट कैसे होगी, डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे जनरेट करेंगे, इन चीज़ों को करने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आप उन चीज़ों को प्रेजेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि 3 ऐसे एंड पॉइंट्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि आप इधर फ्रंट एंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आप बैक एंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आप उसको डिज़ाइन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यूज़र एक्सपीरियंस में। तो अगर इन तीनों एलिमेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं कि अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड से कि आपको एज अ डिज़ाइनर अपने चीज़ों को देखना चाहिए। उसके अंदर आप प्लेन HTML, PSDs और लेआउट और रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को फोकस कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और लाइब्रेरीज हैं, एंगुलर है, रिएक्ट है, अगेन जावास्क्रिप्ट बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं व्यू जैसे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क भी हैं जो कि इंडस्ट्री जायंट है या नेक्स्ट बिग थिंग है, जैसे व्यू है या गो है या और भी इस तरह के बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो कि अपनी कैपेसिटी में एक अच्छा बिजनेस सा कवर करके बैठी है, इंडस्ट्री में स्टैंड कर रही हैं। फिर अगर आपका इंटरेस्ट बैकएंड की तरफ है तो यहाँ पे बहुत सारे जाइंट्स हैं, नोड, पाइथन, नोड सॉरी जावा बेस्ड सॉल्यूशंस या डॉट नेट। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बहुत मैच्योर है, जो कि बहुत स्टेबल है और जिनको यूज़ करते हुए आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये एप्टीट्यूड एड्रेस करना ये आपका काम है, जो कि बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंसेस से या अपने डिफरेंट मेजर से डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, और अगेन फिर उसी बेस पे आप अपना कोई भी टारगेट फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी या लैंग्वेज को आप टारगेट कर सकते हैं। Sir, last question है, which is software is best Android app development? Can you suggest? देखिए, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए तो आपको इन दी एंड जावा और कॉटलिन को ही यूज़ करना पड़ेगा। बट रिसेंटली आप देखते हैं कि अगर हम बात करें हाइब्रिड एप्लीकेशंस की, तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव या फ्लटर में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां पे आप एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए डिफरेंट एक ही कोड के अंदर रहते हुए डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की बिल्ड जनरेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं रिएक्ट नेटिव या फ्लटर की बात करूं तो आप वहां पे एक बिल्ड iOS के लिए भी रिलीज कर सकते हैं, दूसरी बिल्ड एंड्रॉयड के लिए कर सकते हैं, या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपने किसी भी कोड बेस को डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन। तो आपको डिफाइन ये करना है कि क्या आप किसी नेटिव एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या हाइब्रिड एप्लीकेशन की तरफ। उनके अपने डिफरेंसेस हैं, उनकी अपनी प्रोज और कॉन्स हैं, और डिसीजन पॉइंट हैं जिसकी बेस पे आपको तय करना होता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन उनके आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखने होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन किया है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है रिएक्ट नेटिव, जो कि दोनों इन्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आपको बिल बना के दे रहा है। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है। फिर अगर आप स्पेसिफिकली iOS डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप सिर्फ iOS के लिए ही बिल्ड बना पा रहे हैं। आप स्पेसिफिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप सिर्फ एंड्रॉयड ऐप ही क्रिएट कर पा रहे हैं। लेकिन आप रिएक्ट नेटिव फ्लटर में दोनों एंड के लिए बिल्ड जनरेट कर पा रहे हैं। उसमें ऐसा क्या फ़र्क है और कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि कवर नहीं हो रहे, ये भी हमें देखना है। तो बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन किया कि किन किन एरियाज़ के अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं और किन डिसीजन पॉइंट्स की बेस पे आप किसी भी चीज़ को पिक कर सकते हैं। आई होप दैट आंसर्स द क्वेरी। Thank you so much, Tahir bhai, for this awesome session. मुर्शिद भाई, आप हमारे साथ हैं? Yeah, Ghaffar, I am here. So, yeah, let's just guys end the session with some note. Just wanted to share a few things with you regarding this session.
Guys, just a second, please. Okay, guys, sorry, I'm back. Yeah. So what I was gonna share is this K, this whole boot camp, this entire boot camp, was the brainchild of Ghaffar. So I personally would like to thank Ghaffar and his like our entire. Yeah, am I audible now? Hello. If I'm audible, please Yes, give me a Musa, sign. you are. Okay, great. Yes, Yeah, Musa, you don't are worry. audible. The recording would be shared on our Facebook page, on our YouTube channel. The link would be shared on Facebook. So yeah, the brainchild of Ghaffar and his team. So thank you so much, Ghaffar. Thank you so much, the entire social media team there, like the entire Student Ambassador Club team. Thank you so much. Thank you so much, Tahir Bhai. Thank you so much, Sarfraz Bhai, for gracing the event with your presence, for giving us so much to learn. Like I myself honestly enjoyed all these sessions. Uh, so yeah, now just for I would take 10 minutes to introduce you with uh, the program that we are all associated with. It is actually a Microsoft Learn Student Ambassadors program. Yeah, let's just make it quick and wrap it up. uh, ऐसा होता है कि Microsoft Learn Student Ambassadors का जो प्रोग्राम है उसकी एक साल में 4 दफ़ा जो है वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होती हैं. So Alhamdulillah, 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 Mehran University of Engineering Technology is the second, it is the institute with the second highest number of MLSAs from entire Pakistan. एक single institute से second number पे है, the first one is FAS Peshawar. Well, not going over there. So if any one of you want to join Microsoft Learn Student Ambassadors program, just go to the concerned website that is available on our Facebook page. बिल्कुल बल्कि फेसबुक पेज के साथ अटैच की हुई है हमने वो वेबसाइट. आप अगर थोरली देखेंगे तो आपको मिल जाएगी. Yeah, just a second. I would take questions after I'm done, please. Yeah. So what I was saying, yeah. आपको वो वेबसाइट जो है पेज पे मिल जाएगी. What the benefits are countless. आपको अनलिमिटेड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, आपको अनलिमिटेड एक्सपोजर मिलता है, आपको सीखने को बेतहाशा मिलता है. ऑनेस्टली बेतहाशा मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है उसकी. आप जितना सीखना चाहो, आप जो चीज़ सीखना चाहो, एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है हमारी, with almost 6,000 people from around the world gathered under a single flag. और ये नहीं कि सिर्फ टेक बैकग्राउंड से, हमारे पास जो है वो आर्किटेक्चर से भी MLSs है पूरी दुनिया से, हमारे पास इलेक्ट्रिकल से भी है, हमारे पास इन्वायरमेंटल से भी है, हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग से भी जो है वो MLSs है. नॉट फ्रॉम जस्ट मेहरान बट फ्रॉम इंटायर वर्ल्ड. हमारे पास BBA के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास MBBS के स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं. सो या इफ़ यू गाइज लाइक आपको टेक का ज़रा भी चस्का है, if you want to learn technology, if you want to create your career in technology, I would really suggest that you go for application this time. Applications are open around the year. पूरा साल जो है हमारी applications open होती हैं, बंद नहीं होती. हाँ, intake जो मतलब
जो आपके रिव्यू टाइम होता है, इनटेक टाइम होता है, वो साल में 4 बार होता है। मतलब आपकी एप्लीकेशंस एक साल में 4 बार रिव्यू की जाती हैं। यू कैन अप्लाई एज मेनी टाइम एज यू वांट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कब कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने अप्लाई करना है विथ आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, राइट। बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करें। आपको कोई भी इशू होता है यू कैन कम इन कॉन्टैक्ट विथ अस। हम जो है वो आप में से ही हैं। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो। तो आपको कोई भी इशू होता है you can just come in contact with us. We have a very experienced team over here. Campus में भी हमारी बहुत experienced team है। मैम नाजिया हैं, हसन है। We have like literally these guys are awesome. हमारे पास यहाँ पर जामशोरो कैंपस में भी कुरतलैन leads जामशोरो campus, कुरतलैन and Wakar. Kuratlan is from 18 CS while Wakar is from 18 software. They both lead the team right now after me. Like they are awesome. तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो प्रोग्राम के मुतालिक या किसी और चीज़ के मुतालिक, डोंट हेजिटेट टू कम फॉर अस। या सो हैविंग सेड दैट guys, thank you so much for this attending this session and being a part of this session. Do make sure that you guys have filled up the feedback form ताकि ताहिर भाई की जो स्लाइड्स हैं, सरफराज भाई की जो स्लाइड्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर सकें। और आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स भी उन्हीं ईमेल्स पे प्रोवाइड की जाएंगी जो ईमेल जो है आप फीडबैक फॉर्म में भरेंगे। सो काइंडली मेक श्योर कि आप जो अपना ईमेल है वो देख के भरें, देख के फिल करें, सही तरीके से फिल करें। एंड आपका नाम भी, क्योंकि आपका नाम जो है वो हम नहीं बनाते, वो सर्टिफिकेट्स जो है वो दे आर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम, जो आपको मतलब सर्टिफिकेट बनते जाते हैं और आपको सेंड होते जाते हैं। तो आप जो फॉर्म भरेंगे उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट सेंड होंगे। Well, having said that, guys, thank you so much. Thank you so much, Ghaffar. Thank you so much, your team. I really appreciate the hard work that you guys put through in the last 2 weeks. I literally have no words to appreciate you. Well, guys, thank you so much, Tahir bhai, once again for joining us. Thank you so much, Mursal bhai, and thank you so much, Tahir and Tahir bhai.